Assalamu alaikum. Hello everyone. Today I will be teaching you on how to draw a basic mandala. For that you will be needing is a cone like this. If you want to know how I make this cone or replicator, please comment down um, your requirements. I'll be glad in making a tutorial on how I do a basic a cone and applicator in a very easy way. If in case you want to learn the old technique which I used to do earlier, then there's already a video on my channel, you can check it out. But and then if you want to see the latest methods which I've been come up with or have been using since many years, then please comment down as I said before. Then yes, please keep on watching if you want to know how I do a basic mandala with some standard sizes which I follow in making my henna very easy. And yes, so for that, firstly and foremostly, I just want to tell you one thing. I'm more comfortable in holding my cone over here in the front of my applicator, that is my henna cone. So if you want to draw thick lines, you'll have to press more, that is called pressure. And if you want to draw thin or intricate lines, you'll have to press less. Like for example, you'll have to press about 2% more than what you press for intricacy. Like for example, if you press 1% for drawing intricate henna, then you'll have to press 2% for drawing thick designs. Okay, fine, let's jump into the video now. Now first I will be starting it up with a swirl. I'm just drawing a light circle first. If I'm happy with it, then I'll redraw it again. This is what I will be starting it with. So I'm just overlining it. Okay, so now when we are done with this, you can say it as a swirl. We'll just repeat it again. So once you got the grip, हम और एक बार इसे रिपीट करेंगे. अब मैं इसको ओके, अब हमने सीख लिया है कि एक swirl कैसे बनाते हैं, हम उसको आगे कैसे एक डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे, अब हम वो सीखेंगे. ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ swirl बनाएं ऐसे. ओके, जब ये बन गया है, अब हम लोग स्कैलप्स बनाएंगे. स्कैलप्स क्या होते हैं आप इसमें जान लेंगे. ओके, उसके पहले हम लोगों को स्कैलप्स एक हाइट में आने चाहिए. सो हम लोग फर्स्ट एक गाइडलाइन बनाएंगे, एक लाइट लाइन जो सिर्फ आपको विजिबल हो, ताकि सब स्कैलप्स के हाइट एक हाइट की हो, आई मीन इरेगुलर ना हो. सो हम लोग उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. ओके, जब ये बन गया है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा मंडाला बनाना है. अब मुझे इस मंडाला को और बड़ा बनाना है, सो इसीलिए मैं और एक स्कैलप का लाइन बनाऊंगी. आपको इस पर बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज 70% ऑफ योर डिज़ाइंस में सिर्फ स्कैलप्स ही रहता है. सो आई मीन पूरा एंटायर कंप्लीट डिज़ाइन में आपका 70% सिर्फ स्कैलप्स ही रहेगा, यानी वही पैटर्न रिपीट होगा. सो आपको इस पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बट एंड देन अब हम लोग उसको और एक बार प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से मैं और एक लेयर बनाऊंगी. अब मैं और एक गाइडलाइन बनाऊंगी.
ये मैं गाइडलाइन इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये बिगनर ट्यूटोरियल है। अगर आप एक बार सीख लोगे तो आपको एक गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अगर नए से सीख रहे हो तो आपको ये जो गाइडलाइन है बनाना ज़रूरी है। Until and unless you see that you're okay with it, you're fine, and you trust yourself that your scallops are in the same height, then you can proceed with drawing the scallops without any without being dependent on any guideline. Okay, so now this is done. Okay, सो अब ये जब बन गया है, अगर अब हम इसको आगे इन अ डिज़ाइन कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो यू कैन लीव इट एज इट इज़, और आप इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं विद सम डॉट्स। सो मैं दिखाती हूँ कि इवन डॉट्स कैसे बनाते हैं। फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली आपको इसी लाइन में, इसके पैरेलल में 2 डॉट्स बनाने हैं। प्रेस ज़्यादा करना है, इस स्कैलप्स के लिए हम लोग 1% प्रेस किए थे, तो हम लोग डॉट्स के लिए 2% प्रेस करेंगे, और यहाँ पे भी प्रेस करना है, और इसके पैरेलल में इसके ऑपोजिट यहाँ पे और यहाँ पे। और अब इन दोनों डॉट्स के बीच में यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे, और अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे। ओके, अब मुझे फिर भी लग रहा है कि डिज़ाइन इनकम्प्लीट है। सो अब मैं क्या करूँगी कि इन दोनों के बीच में और एक डॉट डालूँगी, बट इसको मैं और थोड़ा कम प्रेस करूँगी। लाइक फॉर एग्जांपल ये हो गया प्रेशर इन द परसेंटेज 1, ये हो गया इन द परसेंटेज 2, और यहाँ पे 1.5 होगा। थोड़ा कम प्रेस करना। ओके, सो बन गया ये एक डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन एक काइंड ऑफ मंडाला है जो आप बच्चों के हाथ पे ड्रॉ कर सकते हो, या यू कैन यूज़ दिस एज अ पैटर्न ऑफ योर ब्राइडल हैना। लाइक आप इसके स्ट्रोक्स बना सकते हो। तो आप इसके एज चेक्स पैटर्न में आप इसको फिलिंग के टाइम पे बना सकते हो। बट एनीवेज मैं ये सब बताऊंगी इन फ्यूचर वीडियोस इंशाल्लाह। बट ये पैटर्न आप सीख लो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। फर्स्टली एंड फॉरमोस्टली ये स्कैलप सीखने को मिलेगा, प्रेशर कैसे डालते हैं एक कोन पे, वो सीखने को मिलेगा। एंड देन ये डॉट्स कैसे डालते हैं एक ही कोन से यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, वो सीखने को मिलेगा। सो यस, अब मैं सेम मंडाला डिज़ाइन दूसरे तरीके से बनाऊंगी, 2 टाइप के अलग स्कैलप्स से। सो यस, अब हम दूसरा मंडाला बनाएंगे। उसके लिए आपको, द कैमरा इज़ रेडी नाउ। अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने इससे शुरुआत की थी एक swirl से, सो विल बी स्टार्टिंग अप दी मंडाला ऑफ दिस न्यू डिज़ाइन विद द swirl itself। सो हम लोग एक swirl बनाएंगे। इसको एक डॉट डालेंगे। अब इसको एक गाइडलाइन बनाएंगे। ओके, अब मैं इसके स्कैलप्स थोड़े छोटे बना रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मंडाला बनाना है। सो द एंटायर कंसेप्ट ऑफ द मेहंदी डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन what the size of the pattern depends. So I'm drawing a big huge mandala, so मैं scallops का height थोड़ा छोटा कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बच्चे के हाथ पे ड्रॉ कर रहे हो तो स्कैलप्स का हाइट बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि उसके हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग आपको स्कैलप्स बनाना पड़ेगा।
अगर आप एक किसी एडल्ट के हाथ पे बना रहे हो तो आपको स्कैलॉप्स सेम भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा ताकि वो बड़ा दिख सके। अब मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ। हम लोग और एक स्कैलप बनाएंगे जो थोड़ा बड़ा रहेगा बट सेम हाइट पे, ऑलमोस्ट 1.5 आई मीन 4 mm की हाइट पे। अब ये 2 mm है तो ये 4 mm की हाइट पे हम लोग गाइडलाइन बनाएंगे। ओके, सो हम लोग अभी बड़े स्कैलप्स बनाएंगे, ऐसे वाले। ओके, अब जब ये बन गया है, आपको आप इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही छोड़ सकते हो। आई मीन या हाँ, आगे डिज़ाइन तो बनने वाला है, बट इन स्कैलप्स को ऐसे ही छोड़ सकते हो या इनमें डॉट्स भी डाल सकते हो। अब मुझे इसको थोड़ा ड्रामेटिक बनाना है तो मैं इसमें टाइनी डॉट्स डाल रही हूँ विद द प्रेशर ऑफ 1 आई गेस। उसके लिए भी मैं गाइडलाइन बना रही हूँ। आपको इनिशियली लगेगा कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट इफ़ यू वांट टू डू इट वेरी प्रिसाइजली एंड आपको अच्छे से सीखना है तो आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अभी मैं इसको फिल करूँगी। ओके, अब ये हो गया थिक लाइन। अब मैं इसको आगे लेके जाऊँगी थिन लाइन से। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला था, देयर इज़ अ रूल कॉल्ड थिक थिन थिन लाइंस, थिक थिन थिन स्कैलप्स। तो अब मैं इसके बाद थिक के बाद थिन लाइन बनाऊंगी, फिर और एक थिन लाइन बनाऊंगी एंड देन उस पर मैं स्कैलप्स ड्रॉ करूँगी। दिस इज़ अ रूल, दिस इज़ व्हाट आई लर्नड इन माई ट्रेनिंग। सो ये जब तभी कंप्लीट होता है जब आप ये रूल फॉलो करोगे। तो अगर एक लाइन बनाओगे तो डिज़ाइन विल लुक कि ये बहुत कंजस्टेड डिज़ाइन है। अगर 2 लाइन बनाओगे तो इट लुक्स नॉर्मल, एंड इफ़ मोर देन दैट तो लगेगा कि गैप बहुत है डिज़ाइन में। सो देयर इज़ अ रूल फॉर दैट स्टैंडर्ड साइज़ कि इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, जब ये थिन लाइन बन चुका है, अब हम इसको इसके ऊपर स्कैलप्स बनाएंगे। ओके, अब ये हो गया हमारा एक मंडाला। अगर आप चाहते हो तो और एक स्कैलप बना सकते हैं, बट एंड देन आई फील देयर टू मेनी स्कैलप्स इन दिस डिज़ाइन। सो स्कैलप्स व्हाटएवर, आई मीन व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, एनीथिंग यू वांट टू। ओके, अब हम लोग इसको ऐसे ही एंड करेंगे जैसे इसको किया था। अब हम लोग इस पे एक डॉट डालेंगे, यहाँ पे एक डॉट डालेंगे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे इसके बीच में। ओके, आपको तब तक प्रेस करना है जब तक आपको लगता नहीं कि ये दोनों डॉट एक साइज़ के हैं। ओके फाइन, अब हम लोग इन दोनों के बीच थोड़ा छोटा वाला डॉट बनाएंगे, ऐसे वाला। इसको और थोड़ा बड़ा बनाएंगे।
अगर आपको मेरा अपडेटेड रेसिपी देखना है कि मैं मेहंदी कैसे बनाती हूँ तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड या प्लीज़ ऑल्सो लेट मी नो कि आपको और क्या सीखना है मेरे ट्यूटोरियल्स में, ताकि मैं मेरे पास कुछ कंटेंट रहे फ्यूचर वीडियोस बनाने के लिए। तो या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ आप लाइक करना और कमेंट करना कि आपको क्या सीखना है एंड आप मुझे बताना कि ये वीडियो कैसे बना है, और आपको अगर कुछ खामियां लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो सो दैट आई कैन इम्प्रोवाइज एज वेल एंड देन आई कैन टीच समथिंग बेटर इन द नेक्स्ट वीडियो. So yes, if you have any queries or any doubts or anything related to henna, then please comment down below. And yes, there's another channel of mine where I teach how to do makeup with the channel name called Fatima Manyar. Yeah, you can watch even those videos, and you can also follow me on another Instagram handle of mine called The Other Side of Me for makeup updates, and for mehendi updates you can follow me on FRM Henna Designer. So yes, if in case you have anything else then please let me know. And yeah, Ramadan Mubarak to everyone. Till then, please remember me in your prayers and your duas. Allah Hafiz.